Assalamualaikum students, welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So students, आज की वीडियो का टॉपिक है FA Part 1 2013 साइकोलॉजी पेपर। आज हम 2013 का साइकोलॉजी पेपर डिस्कस करने जा रही हैं FA Part 1 का, और सॉल्व ऑब्जेक्टिव पार्ट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मेरे चैनल से रिलेटेड मिलती रहें। तो चलते हैं अपने MCQs की तरफ। So the number one MCQ is, in which respect are the experimental and control group not equivalent? किस लिहाज से experimental and control groups equivalent नहीं होते, बराबर नहीं होते? Option A dependent variable, Option B independent variable, Option C extraneous variable, and Option D both A and B. The right option is Option B independent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि जस्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होता है, और ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसके इफेक्ट्स देखे जा सकें। सो कंट्रोल ग्रुप के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूटिलाइज नहीं किया जाता। सो दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप इक्विवेलेंट नहीं होते। Number 2, who established the first experimental laboratory of psychology? Option A Wilhelm Wundt, Option B J.B. Watson, Option C Pavlov, and Option D William James. The right option is Option A Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt ने अपनी लेबॉर्ट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस की थी, एस्टेब्लिश की थी जर्मनी में लिप्जिग के मकाम पर। सो Wilhelm Wundt is the right option. Number 3, which part of the brain is involved in making body movements precise, coordinated, and smooth by controlling muscles? Option A cerebrum, Option B cerebellum, Option C thalamus, and Option D pons. And the right option is Option B cerebellum. cerebellum को आपने हमेशा मूवमेंट से रिलेट करना है क्योंकि ये मसल कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन या स्मूथ मसल्स को लिंक करता है, ओवरऑल इस पे बेस करता है। फंक्शन जो है वो ज़्यादातर मसल से रिलेटेड या मसल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड होता है सेरिबेलम का। नंबर 4, व्हाट डज द वर्ड गेस्टॉल्ट मीन? ऑप्शन ए परसेप्शन, ऑप्शन बी स्टिमुलस, ऑप्शन सी फॉर्म, and option D direction. And the right option is option C form. Number 5, the area of functional contact between neurons is called option A nerve impulse, option B motor area, option C synapse, and option D sensory area. जो ओवरऑल कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन न्यूरॉन्स वो किस पार्ट के जरिए होता है? द राइट ऑप्शन इज साइनैप्स। साइनैप्स के जरिए एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से अटैच होता है, कनेक्ट करता है, ओवरऑल जो फंक्शंस परफॉर्म करता है वो साइनैप्स के जरिए करता है। नंबर 6, विजुअल एक्यूटी और शार्पनेस इज ग्रेटेस्ट एट ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी pupil, and option D none of these. And the right option is option D none of these. क्योंकि फोविया एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे विजुअल एक्यूटी या शार्पनेस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे इनरिच्ड होते हैं rods and cones. Number 7, if a person stares at a small stationary spot of light in a dark room, the spot will appear to move. Such apparent motion is termed as option A phi phenomena, option B delta movement, option C autokinetic effect, and option D gamma movement. And the right option is option C autokinetic effect. Number 7, gradual decrease in the strength of a condition response is termed as the principle of option A stimulus discrimination, option B extinction, option C spontaneous recovery, and option D negative reinforcement. And the right option is option B extinction. Extinction ऐसे प्रिंसिपल को कहा जाता है कंडीशनिंग के जिसमें ओवरऑल कुछ टाइम के लिए जब कंडीशनिंग नहीं परफॉर्म की जाती तो ग्रेजुअल डिक्रीज आ जाता है रिस्पॉन्स में, या कंडीशन रिस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज कर जाता है। सो इस प्रिंसिपल को एक्सटिंक्शन का नाम दिया गया है। Number 8, the changes which occur in a person as a result of learning are called dash changes. Option A behavioral, option B bodily,
option C, neural, and option D, all of these. And the right option is option A, behavioral changes. Number 10. Who focused on the study of observational learning? Option A, Pavlov, option B, Bandura, option C, Kohler, and option D, Skinner. And the right option is ऑप्शन बी बंदूरा। एल्बर्ट बंदूरा जो है उसने फोकस किया था कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के ज़रिए चाइल्ड जो है वो सब इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से सीखता है। और बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट एल्बर्ट बंदूरा का बहुत फेमस है, जिसमें वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और देखा कि किस तरह से एग्रेसिव बिहेवियर अफेक्ट करता है। एक पर्सन जब एग्रेसिव बिहेवियर देखता है तो वो ओवरऑल उसके बिहेवियर में भी चेंजिंग्स आ जाती हैं, जिसमें दिखाया गया था कि चिल्ड्रन जब एग्रेसिव बिहेवियर देखते हैं उसी तरह से वो एग्रेसिव बिहेवियर अपनी टॉयज पे इम्प्लीमेंट करते हैं, शो करते हैं। Number 11. What type of memory can hold information for a very brief period of time? Option A, short-term memory. Option B, sensory memory. Option C, long-term memory. And option D, none of these. And the right option is ऑप्शन बी सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी अगर हम टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो थ्री टाइप्स हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। और सबसे ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो इंफॉर्मेशन स्टोर करती है मेमोरी वो सेंसरी मेमोरी है। ये कुछ सेकंड्स के लिए या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है। Number 12. The memory which contains the meanings of words and concepts is termed as dash memory. Option A, episodic. Option B, semantic. Option C, systematic. And option D, procedural. And the right option is option B, semantic memory. Number 13. Which psychologist was engaged in the experimental study of memory and forgetting? Option A, Spearman. Option B, Binet. Option C, Ebbinghaus, and option D, Guilford. And the right option is option C, Ebbinghaus. Ebbinghaus ने ओवरऑल एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया था, जिसमें नॉनसेंस सिलेबल्स एंड मीनिंगफुल सिलेबल्स को की लिस्ट बनाई थी और ओवरऑल रिकॉल किस तरह से होता है वो असेस किया गया था और सीरीज ऑर्डर का क्या इफेक्ट है। इसके साथ साथ फॉरगेटिंग को भी देखा गया कि कितना ज़्यादा जल्दी फॉरगेट करता है पर्सन और मीनिंगफुल चीज़ें क्या जल्दी याद होती हैं या फिर मीनिंगलेस चीज़ें जल्दी फॉरगेट कर जाता है पर्सन। सो ओवरऑल इसकी जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो बेस करते थे मेमोरी एंड फॉरगेटिंग पे। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एवेंगॉस। Number 14. Which of the following is a major language element? Option A, phonemes. Option B, syllables. Option C, morpheme. And option D, all of these. The right option is option B, phonemes. Phonemes phonetics से relate करता है, यानी overall tone क्या होती है, किस तरह से जो overall alphabets हैं उनको याद किया जाता है different sounds के ज़रिए। ये सबसे मेजर लैंग्वेज एलिमेंट कहलाता है। Number 15. What is called the area of brain considered as an excitatory region for hunger motivation? Hunger motivation के लिए कौन excitatory motivation develop करता है? ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है? ऑप्शन ए थैलेमस, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी cerebrum and option D medulla. And the right option is option B hypothalamus. हाइपोथैलेमस हंगर थर्स्ट से रिलेटेड मोटिवेशन को डेवलप करने में मेन या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। Number 16. The ability of a person to produce desired effects on the behavior of a person is said to be as expression of the motive of option A, aggression, option B, power, option C, achievement, and option D, combat. ओवरऑल एक पर्सन की एबिलिटी होती है जब वो दूसरों के अंदर एक डिज़ायर्ड अफेक्ट या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसको किस मोटिव के अंदर कंसिडर किया जाएगा कि एक पर्सन दूसरों को अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनके बिहेवियर्स को, उनके एक्शंस को मोल्ड कर सकता है। अगर हम मोटिव्स के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करेंगे तो इट इज़ नोन एज मोटिव ऑफ पावर, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। Number 17. Sucking, biting, mouthing new objects by an infant all characterize Freud's psychosexual stage, which is called option A, anal stage, option B, phallic stage, option C, oral stage, and option D, latency. And the right option is
Option C, oral state. According to Jung, the part of the mind storing images and experiences shared by all mankind is option A, personal consciousness, option B, collective consciousness, option C, collective subconsciousness, and option D, collective unconsciousness. And the right option is option D, collective unconsciousness. यूंग के अकॉर्डिंगली हर पर्सन के अंदर जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और इमेजेस होते हैं वो ओवरऑल ऑल मैन काइंड के पास होते हैं। ऑल मैन काइंड या ऑल ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ इमेजेस जो हैं वो शेयर करते हैं जो कि हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में सेव होते हैं। Number 19. Which personality test consists of pictures on which the subject has to write stories? कौन सा टेस्ट है जिसके अंदर पिक्चर्स होते हैं और पर्सन को उस पर स्टोरीज राइट करनी होती हैं? ऑप्शन ए रोशैक टेस्ट, ऑप्शन बी TAT, ऑप्शन सी WAT and option D MMPI. And the right option is option B TAT. TAT stands for Thematic Apperception Test, WAT stands for Word Association Test, and MMPI stands for Minnesota Multiphasic Personality Inventory. So TAT के अंदर पिक्चर्स होती हैं जिसको देख के क्लाइंट को स्टोरीज ड्रॉ करनी होती हैं, उनके पास्ट, उनके प्रेजेंट, उनके फ्यूचर को डिस्कस करना होता है, हीरो की फिगर को एक्सप्लेन करना होता है, उसकी रिलेशनशिप्स को बताना होता है। Number 20. A depth perception cue in which the object partially obstructs the view of another object is called option A linear perspective, option B interposition, option C texture gradient, and option D relative size. And the right option is option B interposition. Interposition में क्या होता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट इस तरह होती है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होता है या फिर उसको कट कर रहा होता है। जिस तरह से बिल्डिंग्स की अगर हम एग्जांपल लें तो जो फ्रंट बिल्डिंग्स होती हैं वो बहुत प्रोमिनेंट होती हैं और उससे जो पीछे बिल्डिंग्स होंगी उनका ओवरऑल हमें इमेज नहीं नज़र आ रहा होगा, तो इसको इंटरपोजिशन के नाम से डेप्थ परसेप्शन क्यू को एक्सप्लेन किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।